Good morning, friends. Welcome to my 38th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding determinants. I have told that determinant is a value attached with a square matrix. Then we have discussed different orders of determinant. We have discussed first order determinant, second order determinant, and third order determinant. Next, we have discussed different properties of determinant and solved some problem based upon properties of determinant. At last, we have discussed regarding Cramer's rule. What is Cramer's rule? Cramer's rule tells how to solve linear equation with the help of determinants. We have solved Cramer's rule. Now today we will discuss the consistency and inconsistency of a linear equation with the help of determinant. How to find out consistency and inconsistency of a linear equation with the help of determinant, today we will discuss. So before discussing this, let me first share my screen with you. Then we will discuss details regarding consistency and inconsistency of linear equations with the help of determinant. 1 minute, please. Okay, friends. So first we will start regarding consistency and inconsistency of a linear equation. First we will study regarding consistency. Consistency का मतलब क्या है? What do you mean by consistency of a linear equation? So first write down consistency. What is consistency? Now please see, अगर एक linear equation का solution available है, उसको बोलते हैं the equation is consistent. So what is a consistence? तो if a linear equation has a solution, अगर एक linear equation का solution available है, then it is said to be consistent. Then it is said to be consistent. इसका मतलब एक linear equation कब consistent होता है? अगर उसका solution available है, which has a solution. If a linear equation has a solution, it is known as consistent. Next, inconsistency क्या है? अभी पढ़ेंगे inconsistency. इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कंसिस्टेंसी. इसका मतलब क्या है? अगर एक लिनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ द लिनियर इक्वेशन. तो लिखेंगे इफ लिनियर इक्वेशन डज नॉट हैव a solution, it is said to be inconsistent. इसका मतलब अगर एक लिनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंसी डिपेंड करता है लिनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, उसके ऊपर उसका कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी डिपेंड करेगा. इसका मतलब सपोज देयर इज ए सिस्टम और लिनियर इक्वेशंस, एक सिस्टम है या लिनियर इक्वेशन है. अगर इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट. तो इफ ए सिस्टम हैव सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट. इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट.
अगर एक सिस्टम या लीनियर इक्वेशन है जिसका डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। आई होप कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी इज क्लियर। कंसिस्टेंसी का मतलब ए लीनियर इक्वेशन हैविंग सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंसी का मतलब ए लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैविंग सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। अभी हम बात करेंगे व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट, if and what are the condition of inconsistency of a linear equation। तो अभी पढ़ेंगे condition of consistency and inconsistency of a linear equation। write down। हेडिंग कीजिए कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, condition of consistency हमारा लीनियर इक्वेशन दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है हैविंग टू अननोन वैल्यू। टू अननोन वैल्यू मतलब एक्स का और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। नहीं तो हैविंग थ्री अननोन वैल्यू। थ्री अननोन वैल्यू का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड तीनों का क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी डिफर्स इन केस ऑफ टू अननोन वैल्यू एंड थ्री अननोन वैल्यू। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट, टू अननोन वैल्यू। in case of two unknown values, what is two unknown value, x और y। x और y दो अननोन वैल्यू है। इसका कैसे हम कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी निकालेंगे। इसका क्रैमर्स रूल क्या है, हम पढ़े थे। क्रैमर्स रूल है इसका x इज इक्वल टू dx बाई डी और y इज इक्वल टू dy बाई डी। ये सब क्या है, हम क्रैमर्स रूल में पढ़ चुके हैं। ये कौन सा रूल है, क्रैमर्स रूल है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ टू अननोन वेरिएबल केस। टू अननोन वेरिएबल मतलब इसके मतलब एक्स और वाई का वैल्यू पता नहीं है। उस केस में लीनियर इक्वेशन या सिस्टम कब कंसिस्टेंट बनता है, कब इनकंसिस्टेंट बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट, इफ d इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर d का वैल्यू क्रैमर्स इक्वेशन में, हम क्रैमर्स रूल में d का वैल्यू जीरो नहीं है तो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज consistent if the system becomes consistent, it has a unique solution, it has an unique solution। किसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, जहां पर क्या होता है, डी का वैल्यू जीरो नहीं होता है, वहां पर ये सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। सेकेंड पॉइंट, इफ डी इज इक्वल टू जीरो, डी अगर जीरो है एंड dx और dy, dx हो सकता है या नहीं तो dy हो सकता है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, d इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट केस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा कंसिस्टेंट। सेकेंड कंडीशन बोलता है d जीरो है, उसके साथ dx या dy इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें से दोनों एनी वन हो जाएगा। तो एनी वन का मतलब क्या है, आइदर dx इज नॉट इक्वल टू जीरो या नहीं तो dy इज नॉट इक्वल टू जीरो।
देन ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा तो द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब फर्स्ट केस में उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सेकेंड केस में उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। अगर क्या होता है, डी का वैल्यू 0 हो जाता है और dx और dy में से कोई भी एक क्या नहीं होता है, नॉन जीरो होता है, तो जाकर सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट बात करेंगे, इफ d इज इक्वल टू 0 comma and dx is equal to 0 and dy is equal to 0। इसका मतलब तीन केस, d भी 0 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, dx भी 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, dy भी 0 आ जाएगा, कॉमा द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, द सिस्टम will have infinite number of solutions। बेटा रूल मन याद रहेगा क्या, क्या रूल है, दो वेरिएबल केस में अगर d का वैल्यू 0 हो जाता, 0 नहीं है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, d का वैल्यू 0 नहीं होगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन किसका आएगा, अननोन वैल्यूज का, x का वैल्यू y का वैल्यू, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर सेकेंड कंडीशन, अगर d का वैल्यू 0 है और dx और dy जो हम पढ़े थे क्रैमर्स रूल में, dx और dy इसमें से कोई भी एक क्या हो जाता है, नॉन जीरो हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, अगर d 0 है, dx भी 0 है और dy भी 0 है, तीनों 0 है, सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब इसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या, तो कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, दिस इज द रूल ऑफ कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ टू अननोन वेरिएबल्स। इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे तो जाकर समझ में आ जाएगा। आप लिखिए एग्जांपल, लिखिए एग्जांपल, सो दैट the following system of equation is inconsistent। एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसको दिखाना है क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो देखेंगे क्या क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, पहले देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और सेकेंड दिया हुआ है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या करना है, इनकंसिस्टेंट करना है, दिखाना है इट इज इनकंसिस्टेंट। तो पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, लिखो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट लिखेंगे इन ऑर्डर टू बी इनकंसिस्टेंट, two conditions must be fulfilled। क्या क्या दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए इनकंसिस्टेंट होने के लिए। देखो बेटा, इनकंसिस्टेंट होने के लिए पहला कंडीशन चाहिए d इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन होगा
d इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन होगा dx और dy is not equal to 0, any one। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं इसका d वैल्यू कितना आता है, फिर देखते हैं इसका dx वैल्यू कितना आता है। dx वैल्यू अगर 0 नहीं होगा तो वहीं पर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर 0 आ गया dx भी, फिर हम जाएंगे dy देखेंगे, dy अगर 0 नहीं होगा तो जाकर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो कंडीशंस फुलफिल हो जाएगा। हम देखेंगे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। नाउ फर्स्ट हम बात करेंगे, ये इक्वेशन में d निकालेंगे। तो व्हाट इज d, प्लीज से d क्या है, लिखेंगे d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट्स। बेटा इसका कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट कितना है, देखो फर्स्ट केस में कोएफिशिएंट कितना है सर, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड केस में कितना है, 3 है, तो 1 आ गया, 3 आ गया। अच्छा यहाँ पर कितना है, नीचे में सर 2 है, यहाँ पर कितना है, 6 है। तो इन सबको लेकर जो मैट्रिक्स आता है, जो डिटर्मिनेंट आता है, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट, दैट इज इक्वल टू डी। तो डी हो जाएगा 1 3 2 6। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू निकालो, 1 इंटू 6 तो हो जाएगा 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3 कितना आता है, 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड, d इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन देखेंगे, dx या dy शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे dx, व्हाट इज dx, लिखे dx लिखिए। सो व्हाट इज dx, dx का मतलब क्या है, dx इज द डिटर्मिनेंट obtained by replacing C1 with known values। बेटा इक्वेशन देखो, इसमें नोन वैल्यू कौन सा है, ये इक्वेशन नजर पर डालो, इसमें से नोन वैल्यू 2 और 7 है। तो इसका मतलब C1 को बदल देंगे किसमें, 2 और 7 से, बाकी जो लिखा हुआ है वही रहेगा। बाकी इक्वेशन को निकालेंगे, हमको पता चलेगा कितना हो रहा है। तो देखते हैं कितना होता है dx। तो लिखेंगे dx इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, नोन वैल्यू नोन वैल्यू कितना है, 2 7। फिर सेकेंड C2 का तो कुछ बदला नहीं है, C2 का 3 6 है। तो इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू आता है 2 इंटू 6 माइनस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, 2 इंटू 6 हो गया 12 माइनस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 हो गया 21, दैट इज इक्वल टू -9। -9 इज नॉट इक्वल टू 0। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अभी प्रूफ हो गया ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे आज d इज इक्वल टू 0 and dx is not equal to 0, it can be concluded that the system is inconsistent। प्रूव्ड, सॉल्यूशन हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, उसमें क्या है, कंसिस्टेंट होने के लिए कंडीशंस क्या है, कंसिस्टेंट होने के लिए कंडीशन है d शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इनकंसिस्टेंट का कंडीशन क्या है, d शुड नॉट बी, d इज इक्वल टू 0 एंड dx और dy में से कोई भी एक इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर consistency and inconsistency in case of 2 unknown variables। अभी हम क्वेश्चन करेंगे 3 unknown variable।
हेडिंग करो हेडिंग करो कंसिस्टेंसी ऑब्लिक इनकंसिस्टेंसी in case of थ्री वेरिएबल का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड। अच्छा, इसमें क्रैमर्स रूल कौन सा लगता है, इसमें ये वाला क्रैमर्स रूल लगेगा, एक्स इजिकल टू क्या है, एक्स इजिकल टू डी एक्स बाई डी, वाई इजिकल टू क्या है, डी वाई बाई डी, जेड क्या है, जेड इजिकल टू डी जेड बाई डी। दिस इज क्रैमर्स रूल, यहां पर लगेगा। तो देखेंगे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी इन केस ऑफ थ्री वेरिएबल केस, जहां पर ये क्रैमर्स रूल लगता है। तो देखेंगे व्हाट आर द कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशंस, कंडीशन नंबर 1 थ्री वेरिएबल केस में, फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट if d is not equal to 0, then it is consistent. If it is consistent, it has an unique solution. वही condition. Second condition, if d is equal to 0, comma, second and dx or dy or dz is not equal to 0. तो दो कंडीशन है, d इक्वल टू 0 एंड dx dy dz इज नॉट इक्वल टू 0, देन the system is inconsistent. तो दो कंडीशंस पढ़ लिए। पहला कंडीशन क्या है, d का वैल्यू 0 नहीं है। अगर d का वैल्यू 0 नहीं है तो ये कंसिस्टेंट होगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकेंड केस में d का वैल्यू 0 है और उसके साथ dx या dy या dz इसमें से कोई भी एक, एनी वन इज नॉट इक्वल टू 0, एनी वन, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अभी थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, इफ d इक्वल टू 0, and dx equal to 0 and dy equal to 0 and dz equals to 0। इसका मतलब d भी 0 है, dx भी 0 है, dy भी 0 है, dz भी 0 है। तो वहां पर क्या होगा, कॉमा, देन उसमें क्या होगा, देन इन दिस केस the value of x, y and z shall be indeterminate। इनडिटर्मिनेट का मतलब इसका वैल्यू नहीं निकल सकता है। तो थ्री वेरिएबल केस में क्या है कंडीशंस, मैं एक बार समझा देता हूं। अगर d का वैल्यू 0 नहीं है तो इस कंसिस्टेंट हो जाएगा सिस्टम और इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर d का वैल्यू 0 है और dx dy dz में से कोई भी एक नॉन जीरो है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। थर्ड केस में d का वैल्यू 0, dx का वैल्यू 0, dy का वैल्यू 0,
डी जेड का वैल्यू 0। इन दिस केस एक्स वाई जेड का वैल्यू इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। इनडिटर्मिनेट मतलब इट कैन नॉट बी फाइंड आउट। बात समझ में आ रहा है क्या? इसके ऊपर एक प्रॉब्लम अभी बनाएंगे। ओके, तो राइट डाउन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम लिखिए, सो दैट एग्जाम्पल, लिखिए सो दैट the following equation is inconsistent। एक इक्वेशन दिया गया है, वो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, दिखाइए। तो क्या क्या इक्वेशन दिया हुआ है लिखिए। पहले लिखिए 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन गया। सेकेंड इक्वेशन बोल रहा है x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 12। थर्ड इक्वेशन बोल रहा है 3x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन को हम दिखाएंगे क्या? दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। लिखिए सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट, in order to be inconsistent, an equation has to fulfill the following। ये नीचे वाला चीज को फुलफिल होना चाहिए। क्या क्या फुलफिल होना चाहिए? पहला चीज फुलफिल होना चाहिए d इज इक्वल टू 0। सेकेंड चीज होना चाहिए dx और dy और dz इज नॉट इक्वल टू 0, एनी वन। कोई भी एक हो जाएगा तो चलेगा। तो पहले हम ढूंढेंगे d क्या है। सो व्हाट इज d? तो d का मतलब क्या है? d का मतलब हम क्रैमर्स रूल में पढ़े हैं, d इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट। तो d इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स। आप देखिए, ये जो है इसमें से ये 4, 12 और 10, इसको बोला जाता है नोन वैल्यू। क्या बोला जाता है इसको? नोन वैल्यू। दीज आर नोन एज नोन वैल्यू। कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट है ये एक्स वाई जेड के सामने जो लिखा हुआ है, ये एक्स के सामने क्या लिखा हुआ है? 2, दिस इज द कोएफिशिएंट। अच्छा, ये वाला वाई के सामने में क्या लिखा हुआ है सर? 1 लिखा हुआ है, 1 into, तो 1 इज द कोएफिशिएंट। ये जेड के सामने क्या लिखा हुआ है सर? 1 लिखा हुआ है, 1 इज द कोएफिशिएंट। ये एक्स के सामने क्या लिखा हुआ है सर? 1 लिखा हुआ है, 1 इज द कोएफिशिएंट। तो यहां पर कितना है? 3। नेक्स्ट केस में 2। अच्छा, ये 3 के सामने ये 3, 2 प्लस 2y में 2, इसमें 3। बात समझ में आ रहा है? कोएफिशिएंट समझ में आ गया? तो d इज इक्वल टू कितना होगा?
D इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट किसका, कोएफिशिएंट का। फर्स्ट होगा 2 1 1, नेक्स्ट 1 3 2, नेक्स्ट होगा 3 2 3। डी मिल गया आपका। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप एक्सपेंशन करके निकालिए, घर में निकाल देना। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक्सपेंशन करने से आपको वैल्यू मिलता है 0। समझ में आ रहा है क्या? तो डी का वैल्यू 0 आ गया, आपको ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक्सपेंड करके निकालना है। तो एक बार डी मिल गया, सेकेंड कंडीशन हमको क्या चाहिए, dx। व्हाट इज dx? dx का मतलब क्या है? dx का मतलब हम क्या करेंगे, एक ऐसा डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जो क्या करेगा, किसको रिप्लेस कर देगा, C1 को रिप्लेस कर देगा, किससे, द नोन वैल्यू से। तो लिखेंगे dx का मतलब क्या है, पहले लिखिए। तो लिखेंगे dx इज द डिटर्मिनेंट obtained by replacing C1 with known values। known values से C1 को रिप्लेस कर देने से dx आता है। तो dx का वैल्यू कितना आएगा, तो देखते हैं dx का वैल्यू कितना आता है। तो dx का वैल्यू क्या है, पहले C1 को रिप्लेस करेंगे, बेटा ये C1 है, इसको रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, नोन वैल्यू 4, नोन वैल्यू 12, नोन वैल्यू 10। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा 4 12 10। नेक्स्ट बाकी जो था वही रहेगा, ये था ये था, ये दोनों रहेंगे 1 3 2, नेक्स्ट 1 2 3। इसका वैल्यू को एक्सपैंड करके निकालेंगे, इसका वैल्यू dx का वैल्यू एक्सपैंड करेंगे तो निकलेगा 30। हमको पता है 30 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर हमको दो कंडीशन फुलफिल मिल गया, d का वैल्यू मिल गया, dx का वैल्यू मिल गया। तो लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे नीचे में, बेटा आपको सॉल्व करने के टाइम में इसको पूरा सॉल्यूशन करके वैल्यू निकालना है, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख दिया हूं। तो नेक्स्ट लिखेंगे, आज इन दी एबव केस क्या हुआ है, d इज इक्वल टू 0 and dx is not equal to 0, it can be concluded that the system is inconsistent। बेटा सिस्टम क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट है, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम बात किए कंसिस्टेंसी और इनकॉन्सिस्टेंसी के बारे में, कैसे एक फंक्शन कंसिस्टेंट है, कैसे एक फंक्शन इनकॉन्सिस्टेंट है, कैसे पता चलेगा, हम उसके बारे में बात किए आज। समझ में आ रहा है क्या, कैसे कंसिस्टेंट होगा, अगर डी का वैल्यू 0 नहीं होगा तो कंसिस्टेंट होगा। कैसे इनकॉन्सिस्टेंट होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा कब, जब d का वैल्यू 0 होगा, फिर dx dy या dz में से कोई भी एक नॉन जीरो होगा, तो जाकर जो सिस्टम है, जो इक्वेशन है, वो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी हम बात करेंगे सम टिपिकल प्रॉब्लम ऑन क्रैमर्स रूल। हेडिंग करो, बेटा हेडिंग करो, सम टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑन क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के ऊपर कुछ टिपिकल प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, ये सारा प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा, कैसे सॉल्व करते हैं उसका ट्रिक बता दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1,
लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्रैमर्स रूल का ऊपर। वन सेकेंड। लिखिए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन by using Cramer's rule. Solve the following equation by using Cramer's rule. Cramer's rule को यूज करके आप ये नीचे दिए हुए इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। पहले दिया हुआ है, देखिए 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। सेकेंड दिया हुआ है x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट में दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, इसको देखकर बोलो ये जो क्वेश्चन है ये कितने अननोन वेरिएबल्स हैं? तो सारी ये अननोन वेरिएबल 3 है। कौन कौन सा? 3 अननोन वेरिएबल केस है। लेकिन यहां पर इक्वेशन में हर जगह पर एक्स वाई जेड नहीं दिया हुआ है, तो इट्स ए 3 अननोन वेरिएबल। यहां पर हमको सॉल्यूशन जब करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन को रीराइट करेंगे तो जाकर हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। तो इन दिस केस फर्स्ट वी हैव टू rewrite the equation in form of x y z। इसका मतलब हर इक्वेशन में x आएगा, y आएगा, z आएगा। जैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? फर्स्ट x आएगा, फर्स्ट में तो सर x वगैरह कुछ नहीं, y से शुरू हुआ है, तो x नहीं है तो 0x प्लस फिर इक्वेशन y है 2y माइनस 3z हो गया इज इक्वल टू 0। फर्स्ट केस समझ में आ रहा है क्या? सेकेंड केस सर x है तो x मतलब कौन सा x के सामने 1x प्लस y, सर y है 3y, z है क्या? नहीं, तो प्लस 0z इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट केस में 3x x है प्लस 4y, z है क्या? नहीं, 0z नहीं है तो 0z is equal to 3। Now you get the equation. Now you know the trick to solve the equation. First you have to calculate d, then you have to calculate dx, then you have to calculate dy, then you have to calculate dz, and you have to find out the value of x, y and z। तो इसका ट्रिक समझ में आ गया। तो इसमें क्या करना है, पहले इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट कर देना है? इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। तो बैलेंस करने के बाद x निकालेंगे, y निकालेंगे, z निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या? कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? पहले d निकालते हैं। सो व्हाट इज d? d इज इक्वल टू, तो d क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू क्या करेंगे? d इज द वेरिएबल डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट। फर्स्ट का कोएफिशिएंट 0, सेकंड का कोएफिशिएंट 2, थर्ड का कोएफिशिएंट -3। इसमें होगा 1, देन 3, देन 0।
नेक्स्ट थर्ड में होगा 3, नेक्स्ट में होगा 4, नेक्स्ट में होगा 0। डी का वैल्यू, इसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे, इसका वैल्यू आ जाता है 15। आप सॉल्व करना घर में। फिर हम निकालेंगे dx। dx कैसे निकालेंगे? हम C1 को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? नोन वैल्यूज। व्हाट इज द नोन वैल्यू? यहाँ पर देखो नोन वैल्यू क्या है, यहाँ पर सर नोन वैल्यू ये है 0 -4 3। दिस इज नोन वैल्यू। तो dx क्या हो जाएगा? dx C1 बदल जाएगा, G1 के बदले में हो जाएगा 0 -4 देन 3। नेक्स्ट बाकी जो था वो रहेगा 2 3 4 -3 0 0। इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन dx का वैल्यू आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन करने से -75। ठीक है। नेक्स्ट dx के, नेक्स्ट dy निकालेंगे। dy निकालो, dy का मतलब कितना आता है? नहीं, इसका 75 आता है। dx का वैल्यू 75 आता है, तो dx का वैल्यू 75 आया। नेक्स्ट dy का वैल्यू निकालेंगे, तो dy का वैल्यू निकालो। dy में क्या करेंगे? C2 को रिप्लेस कर देंगे। किसके साथ? C2 को रिप्लेस कर देंगे हम नोन वैल्यूज के साथ। तो dy निकालो, dy इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट जो था वही लिखेंगे। डिटर्मिनेंट क्या है? 0 1 3। किसको रिप्लेस करेंगे? C2 को इस बार रिप्लेस करेंगे किसके साथ? नोन वैल्यूज। नोन वैल्यू 0 -4 3 हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? जो डिटर्मिनेंट था -3 0 0, dy आ गया। इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू आता है -45। फिर हम निकालेंगे dz। dz में किसको रिप्लेस करेंगे? dz में सर C3 को रिप्लेस करेंगे। तो dz का वैल्यू कितना आएगा? 0 1 3, नेक्स्ट 2 3 4, नेक्स्ट आ जाएगा नोन वैल्यू 0 -4 3। इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा एक्सपेंशन मेथड में? -30। सारा वैल्यू आ गया। अभी क्रैमर्स रूल लगाएंगे, वैल्यू निकाल देंगे। तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है? लिखो क्रैमर्स रूल। x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू dx बाई डी। बेटा dx कितना है? dx है 75 बाई d है 15, आ जाएगा 5। y इज इक्वल टू क्या होगा? dy बाई डी। बेटा dy है -45, ये है 15, हो गया -3। फिर निकालेंगे z। z हो जाएगा dz बाई डी। dz का वैल्यू निकालेंगे -30 बाई 15, दैट इज इक्वल टू -2। आंसर। इस तरह का प्रॉब्लम को, टिपिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? ट्रिक लगा देंगे। जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन था उसको पहले बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। तो अभी और एक वेराइटी का प्रॉब्लम देगा, उसको लिखते हैं पहले। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। पहले क्वेश्चन लिखो, फिर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। 7 पेन एंड 30 पेंसिल्स
7 pen and 30 pencils together cost rupees 95. Full stop. Similarly, लिखेंगे 5 pens and 40 pencils together cost rupees 105. Find the cost of pen and pencil by using Cramer's rule. क्रैमर्स रूल को यूज करके पेन और पेंसिल का दाम निकालना है। तो अभी क्या करेंगे, पहले देखेंगे पेन का दाम पेंसिल का दाम दिया हुआ है, मिलाकर दिया हुआ है, यहाँ पर इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। बचपन में इस तरह का प्रॉब्लम पढ़े होंगे, पेन का दाम को x लेंगे, पेंसिल का दाम को y लेंगे। तो सॉल्यूशन, लेट the price of a pen is equal to x and price of a pencil is equal to y. फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, 7 पेन, एक पेन का दाम x है, तो 7 पेन का दाम 7x प्लस 30 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम y है, 30 पेंसिल मतलब 30y, 30 पेंसिल, ये दोनों का दाम मिलकर कितना है 95, दैट इज इक्वल टू 95। इक्वेशन आ गया 7x प्लस 35 इज इक्वल टू 95। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड इक्वेशन क्या है, 5 पेन्स, बेटा एक पेन का दाम तो x है, तो 5 पेन इज इक्वल टू 5x। अच्छा, प्लस 40 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम तो y है, तो 40y इज इक्वल टू 105। अभी ये जो इक्वेशन आ गया, इसका सॉल्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हिच रूल, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले d निकालेंगे, फिर dx निकालेंगे, फिर dy निकालेंगे, फिर x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले d निकालते हैं। तो d का मतलब क्या है, d का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। बेटा यहां पर कोएफिशिएंट क्या है, 7 एक कोएफिशिएंट है, 30 एक कोएफिशिएंट है, 5 एक कोएफिशिएंट है, 40 एक कोएफिशिएंट है। इसको अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे 7, 30, 5, 40, ये हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू देखो 7 इंटू 40 माइनस 5 इंटू 30। 7 इंटू 40 कितना आता है 280 माइनस 5 इंटू 150, दैट इज इक्वल टू 130। बेटा d निकल गया, फिर क्या निकालेंगे dx। व्हाट इज dx, dx का मतलब जो c1 है डिटर्मिनेंट का, उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, नोन वैल्यू। बेटा यहाँ पर नोन वैल्यू कौन सा है, नोन वैल्यू ये है 9515, दिस इज नोन वैल्यू। dx इज इक्वल टू
determinant obtained by replacing C1 with known values। देखते हैं नोन वैल्यूज को हटाकर कितना डिटर्मिनेंट आता है। तो कितना आ जाएगा, dx इजिकल टू, लिखो dx इजिकल टू, पहले नोन वैल्यू को डालो, नोन वैल्यू कितना है 95 105, बाकी जो डिटर्मिनेंट था उसको उतार देंगे, बाकी डिटर्मिनेंट कितना था 30 40, तो इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू होगा 95 इंटू 40 माइनस 30 इंटू 105 या 105 इंटू 30। बेटा इसका वैल्यू आता है 650, dx आ गया। फिर हम निकालेंगे dy, तो d निकल गया, dx निकल गया, dy निकालेंगे। What is dy? dy is the determinant obtained by replacing C2 with known values। तो लिखेंगे determinant obtained by replacing C2 with known values। known values से C2 को हटा देंगे, तो जो आएगा वो हो जाएगा dy। देखते हैं dy कितना आता है, लिखिए dy इजिकल टू, बेटा फास्ट केस में जो था वही लिखेंगे, फास्ट में C1 जो था वही लिखेंगे 75, C2 बदल जाएगा, नोन वैल्यू आ जाएगा, नोन वैल्यू तो 95 105 था, तो इसका वैल्यू कितना होगा 7 इंटू 105 माइनस 5 इंटू 95, 7 इंटू 105 माइनस 9 इंटू 95, इसको कैलकुलेट करने से आता है 260। तो हमको dx d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया, क्रैमर्स रूल डालेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल क्या है, dx इजिकल टू या x इजिकल टू, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल x इजिकल टू क्या होगा dx बाई टी। बेटा dx कितना है, x इजिकल टू dx बाई डी, dx कितना है, dx तो निकाले 650 बाई डी, डी का वैल्यू तो निकला है 130, कितना आता है 5। सिमिलरली y इजिकल टू dy बाई डी, बेटा dy तो निकला है 260 बाई डी कितना है, d तो निकला है 130, दैट इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू आ गया 5, y का वैल्यू आ गया 2। x मतलब प्राइस ऑफ पेन, y मतलब प्राइस ऑफ पेंसिल, तो लिखेंगे देयरफॉर द प्राइस ऑफ पेन is ₹5 per unit and price of pencil is ₹2 per unit। आंसर। बेटा इसके साथ हम क्या किए, क्रैमर्स रूल का इंपोर्टेंट, इस तरह का क्रैमर्स रूल का 2 तरह का प्रॉब्लम देगा, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम देगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, कभी कभी ये इक्वेशन नहीं देगा, इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा। तो आज क्या पढ़े, समरी बनाएंगे फिर खत्म करेंगे। समरी, आज पढ़े एक इक्वेशन
कब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता है। तो इनकंसिस्टेंट कब होता है, कंसिस्टेंट कब होता है। कंसिस्टेंट होने के लिए एक कंडीशन चाहिए। कंडीशन क्या है, डी इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड पढ़े, इनकंसिस्टेंट होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। क्या क्या दो कंडीशन, पहला कंडीशन डी इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन dx और dy और dz एनी वन इसमें से इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए तो इनकंसिस्टेंट होगा। थर्ड पॉइंट पढ़े क्रैमर्स रूल के बारे में। क्रैमर्स रूल में ऑन बैलेंस्ड प्रॉब्लम देगा, उसको फास्ट क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा। बैलेंस्ड कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड फॉर्म में रखेंगे। और फोर्थ पढ़े, कभी कभी क्रैमर्स रूल में इक्वेशन बनाना पड़ता है फिर सॉल्व करना पड़ता है। क्रैमर्स रूल में इफ इक्वेशन नॉट गिवन, we have to frame the equation. We have to frame the equation first, then do the solution. But with this, we come to an end of discussion on the chapter of determinants. डिटर्मिनेंट्स चैप्टर खत्म कर लिए। नेक्स्ट क्लास से हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे नया चैप्टर, द न्यू चैप्टर इज मैट्रिसेस। आज डिटर्मिनेंट का डिस्कशन खत्म हो गया। और बिफोर कंक्लूडिंग माय सेशन, लेट मी फर्स्ट रिपीट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल इज Commerce Forum. Once you subscribe it, kindly press bell icon and like button if you like my sessions. And if you have any doubt, you can email me in my email ID. My email ID is biswamishra, biswamishra@gmail.com. Thank you, thank you all for watching my videos. Thank you. Have a nice day. Thank you all.